Welcome to Self Nurture Network's first webinar of 2026. I'm Minal Fatima, the founder of Self Nurture Network SNN, and I'm so glad that you're here tonight. For those who are new to us, SNN is Pakistan's mental health and wellness community. We run free webinars, school seminars, and connect people with the right health professionals. Tonight is exactly what we stand for, bringing expert knowledge directly to you for free. Before we begin, can everyone type their name and city in the chat? I want to see where you are all joining from tonight. Well, wonderful. Tonight we are talking about something that affects literally every person watching your posture, your spine, whether you're a student working from home, sitting in an office, or parent. This applies to you. Our speaker tonight is Dr. Mahin Wasim, our head of physical wellness and rehabilitation at Self Nurture Net. So, we are today here to answer the most commonly asked questions from a physical therapist. आज हम basically जिसके बारे में बात करेंगे that is about your posture. We are going to talk about the rehabilitation, how you can make it say कि how basically you can preserve or prevent yourself from getting into trouble or getting into some postural related diseases. We are going to answer some very big questions today. So हमारा पहला जो सवाल होगा that would be, is it possible to correct years of bad posture and what would be the permanent damage अगर आप अपने posture के ऊपर काम नहीं करते तो and what damage could occur, what is the most important and the most crucial postural habit for the students. Basically जो अगर हम बात करें तो हमारी जो target audience होगी that would mostly be the students जो कि what they are doing, they are studying for about like 6 to 8 hours, right? And they don't have a customized table, they don't have specific chairs for them, they are not taking any sort of precautions, they're just studying with anywhere, like they're studying anywhere, studying on the beds, they are studying on the random chairs, and they even sit down on the floors as well. So basically that could affect your posture day by day. And the third question is, can the bad posture actually affect your mood and mental health? So we are absolutely worried about this. So आपका जो bad posture होता है ना, that is eventually and 110% gonna affect your mood and your mental health. Because if you are having generalized pain in your neck, in your back, then your mood will be distorted. आप बुरा फील करेंगे, you will have started having mental issues कि आपका जो brain है, it will be draining and you won't be able to function properly on some your major task, or you won't be able to help others like in any sort of issues. And what we can do कि हम क्या आपकी बॉडी में किस तरह के जो issues आते हैं, तो when are you going to connect to the physiotherapist, वो कौन सा एक पॉइंट फोकल पॉइंट होगा जब आप रीच कर जाएंगे और उस पर आपको लगेगा कि नाउ इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर, इट्स टाइम टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपको वो क्या वक्त है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस मेजर स्टफ टुडे. पहले हम जरा इसको समझ लेते हैं कि पोस्चरल करेक्शन होता क्या है. Postural recorrections or rehabilitation, which is the topic of today, it basically tells us कि आपकी जो body है, what sort of asymmetries it's following, कि किस तरह की asymmetries आपकी body जो है वो उनको देख रही है, और आगे अगर यही प्रोलॉन्ग रही एसिमेट्रीज तो आगे क्या होगा, और उसके बाद आपकी न्यूरोलॉजी जो है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट यू वुड बी नीडिंग फॉर अ बेटर posture or a ideal posture. You can, nobody is perfect here, so we can just try to maintain the standards, but we can't basically reach the self realization or actualization basically. So
let's just dive into it quickly, and in the after effects we can just watch, and we will try to do some exercises jo ke they will be good for your posture, and I will be teaching you some few of the exercises that you guys can do at your house, at your convenience, and you can do it at anywhere where you would like to do it. So this is what we are going to study today. All right, so let's just डाइव इनटू इट. अब हम लोग बेसिकली आपके सवालों का जवाब देंगे कि जब आपका बैड पोस्चर शुरू हो जाता है तो वो बेसिकली आपके माइनर ट्रॉमा से शुरू होता है. दैट यू हैव जीरो अवेयरनेस दैट हाउ यू आर गोना सिट, हाउ यू आर गोना, you know, how you are going to take your body, you know, how you have to sit, how you have to lay down, how you have to get up from the bed. तो ये सारी जो चीजें हैं, these are very crucial things, and if we are not talking about that, then we are basically missing out on something major. All right, and if you guys, it's a pro tip for the students for the next question that they have asked me the most, वो है कि स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से पोस्चर को मेंटेन रखना है. If you are constantly like very persistently studying for about straight 6 to 8 hours, so what we can do, like उसके अंदर हम लोग ये करेंगे कि we are going to take some breaks. We are going to take some 15 to 20 minutes break at any you know, we are going to take some 15 to 20 minutes break. We have answered the major question कि हम लोग किस तरह से अपनी 6 to 8 hours की जो persistent routine है, जिसमें अगर आप straight persistently studies कर रहे हैं, so I would suggest you guys as a physiotherapist that you guys have to take a break. Like you have to take a break of like 15 minutes and hardly extend it to 30 minutes. And if you have like layer of time, and if you don't have it, then you can just extend it from, you can start it from 5 minutes, and then you can expand it to hardly 15 minutes if you have not that much time. उसमें आप क्या कर सकते हैं? You can just go for a round, just go for a walk, just go for something else, just try to do something else. Like if you are sitting, then you can lay down for some time. If you are laying, then you can sit down for some time. And if you are sitting, then you can stand for some time. So you can just interchangeably use all these positions if you would like to use. And how the bad posture is going to affect your mood and your mental health. Basically, if you are feeling pain एंड लिथार्जिक. अब लिथार्जिक का मतलब आपको बताते चलेंगे क्या होता है कि अगर आपको ऐसा ही फील होता है कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग रियली बैड अबाउट, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ टुडे, आई डोंट, बेसिकली वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, and we are majorly focusing on aesthetics. We are obsessed with looks. You guys agree with it, right? ये चीज हम कर सकते हैं कि बहुत सारी जो आजकल की हमारी यूथ है, यंग वुमेन है, they want to have a good posture, they want to look good. कौन कौन सी लड़की होगी जो नहीं चाहेगी कि वो खूबसूरत दिखे, जिसका पोस्चर अच्छा हो. सो बेसिकली जब आपका पोस्चर अच्छा नहीं होता है, देन यू स्टार्टेड फीलिंग अबाउट लो अबाउट योरसेल्फ. तो आप अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते. यू स्टार्टेड हैविंग सम issues. And what sort of an issues these are, let me just share that with you, कि आपको inferiority complex हो जाते हैं. ठीक है, आप अपने आप को, you know, you started feeling yourself that you're feeling a bit low, you're not feeling that confident about yourself in this. So this is the starting point, that where your posture is not good and you need to work on yourself. उसके बाद आपका मूड तो इस तरह से डिसहार्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी सीइंग कि आपका जो मेंटल इश्यूज हैं वो किस तरह से आते हैं कि you might be going to anxiety, and if your anxiety prolongs, then it could be a depression. So basically इस तरह से जब आपका posture नहीं सही होगा तो you will be having major neck pain. तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले तो आपको नेक पेन होने वाला, दैट्स फॉर श्योर, दैट आई एम गोना टेल यू, अगर आपका पोस्चर नहीं सही होता. फिर उसके बाद इफ यू इग्नोर योर नेक पेन, देन इट गोइंग टू प्रोलॉन्ग टुवर्ड्स योर अपर बैक एंड देन टुवर्ड्स योर लोअर बैक. ओके, एंड वो जो एक जनरलाइज्ड पेन होगा ना, इट वुड नॉट बी एट द फोकल पिन पॉइंट, इट वुड बी जनरलाइज्ड, कि आपको पूरी बॉडी में ही पेन शुरू हो गया है, कि आपको यू आर नॉट फीलिंग वेल, लाइक आपको आपकी कमर में दर्द हो रहा है और पूरी कमर में दर्द हो रहा है, आप पिन पॉइंट भी नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कहाँ पे एग्जैक्टली दर्द हो रहा है. तो दिस इज बेसिकली सम जनरलाइज्ड
वेल बीइंग जो आपको होनी चाहिए और आपकी नहीं है, बिकॉज you're having a bad posture. So this is how we have interlinked the bad posture with the mental health and the mood. Uske alawa we have to talk about that when we have to go towards a physiotherapist, कि आप physiotherapist के पास किस टाइम पे आप जाएंगे और क्या आप how would be the consequences then you have to go. जब आपको पता ही है कि जब पाकिस्तानी अवाम की अगर बात करें तो पाकिस्तानी अवाम टिपिकल अवाम है, कन्वेंशनल अवाम है, तो वो क्या करती है कि वो जब तक बंदा मरने वाला नहीं ना हो जाएगा, कि मतलब बस आखिरी सांसें चल रही हैं गाइस, इतना पेन है, शार्प शूटिंग पेन है और स्टैबिंग सा पेन है, बहुत ही बर्निंग पेन है, और जैसे एक होता नहीं है कि बहुत शदीद पेन है ना, तब जब उनका पेन 10 on 10 होगा ना, सिर्फ तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले नहीं वो जाएंगे। पहले वो बस इसी तरह देखेंगे घरेलू कुछ टोटके कर लें, कुछ जो है वो खुद ही से ही कुछ दवाई खा लें, कुछ पेन किलर्स। मोस्टली तो हमने देखा है कि सबसे पहले जो लोगों का फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, दैट्स पेन किलर्स ऑफ कोर्स, कि सबसे ज्यादा पेन किलर्स ले लेते हैं, और कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि वो जाके इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, पेन किलर इंजेक्शंस, एंड यू गाइज नो व्हाट्स आर द रेपरकशंस, व्हाट विल बी द क्या रेमिफिकेशंस आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे इफ यू गाइज आर गोइंग विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स द इंजेक्शंस। वो बेसिकली सिंपल स्टीरॉइड्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद जब आपके जो है वो क्या हो जाता है कि व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है, यू नो। जब आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगती है, राइट। सो व्हाट वी आर अबाउट, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी मेडिकेशंस, कि आप जब पर्सनली खुद ही से जाके अपने वुंड्स को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जनरलाइज्ड पेन के लिए बहुत सारे लोग वीनोफर्स लगवाने चले जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी बॉडी एनीमिक भी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। लोगों को अपनी पेन्स को पहचानने में भी दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा पेन है और किस डॉक्टर के पास उनको जाना है। दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दिस situation at this era. So this is basically the point of point of debate, or the point of ponder, that what we have to do, what are the consequences that you guys are gonna face if you are not going to treat your issues at the point. तो वो जो प्रॉब्लम्स है पहले तो लोग उसको खुद ही सॉल्व करेंगे, उससे इंजेक्शंस लगवाएंगे, अगर इंजेक्शंस ने वर्कआउट कर लिया तो फिर इंजेक्शंस पे ही आगे भी रिलाई करने लगेंगे, और फिर जब इंजेक्शंस जो हैं उनको काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे, फिर वो अपने फिजियोथेरेपी के पास आएंगे, और वो भी तब जब उनको एक जनरल फिजिशियन जो है वो रेकमेंड करेगा, तब ओनली देन दे आर गोइंग टू लुक एट themselves. So these are the most hot questions that we have right now, जिनको मैंने आंसर कर दिया है. If anyone from the chat, they can ask any sort of a question, and then we will go towards the rehabilitation, कि proper rehab की जो exercises हैं उन पे हम बात करेंगे, and I will give you guys some 5 to 10 exercises, and I will tell you that how you're gonna do them, and at what point, at what part of the day that you can do that, and how many times you are going to do that. We will discuss everything. So if you guys have any sort of other questions regarding the bad posture, you can write down it in the chat, and then we can answer it at the end. All right, so let's just talk about the rehabilitation and the spine alignment. You know, this there is a new quote in the market going on these days that's called smoking is the new sitting. Basically, sitting is the new smoking. सो अगर आप बहुत देर से इनएक्टिव हो, यू आर जस्ट सिटिंग लाइक अ वेजिटेबल इन योर काउच, and you're not standing up, you're not going to gym, you're not doing any sort of physical activity, then it's worse than smoking. You will have bad repercussions on your body, and it's even worse than smoking sometimes. And let's talk about the general exercises that you guys can do at your house. So let's talk about some cervical neck की exercises से हम लोग start करने वाले हैं, in simple, in the common parlance you guys can understand in any of the language, so I can speak for that. And let's talk about the cervical and spine posture. Seated के लिए अगर हम बात करेंगे, so you guys are sitting down,
You just have to sit and observe your posture. अगर आप इसमें जो राइट वाली आप लोगों के सामने जो पिक्चर है, यू नो योर लेफ्ट पिक्चर, जो आप अगर उसको देखें, आपकी जो लेफ्ट पिक्चर है उसको अगर आप लोग देखें तो यू विल सी कि वो, एक तो उसकी पिक्चर से ही लग रहा है कि दैट पर्सन इज लुकिंग रियली अगली, दैट्स नॉट लुकिंग गुड, एस्थेटिकली बहुत बुरी है, ठीक है, पहली बात हो गई, दैट्स द मेजर कंसर्न ऑफ द वुमेन दीज डेज। उसके बाद दूसरा आप देखें कि उसकी नेक पे कितना स्ट्रेन आ रहा है, फिर आप देखें कि उसका पीछे से एक हम्प पोस्टर जो है वो डेवलप हो रहा है, इट्स नॉट देयर बट इट्स डेवलपिंग, इट्स सूनर। अब आपने बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी देखा होगा कि पीछे एक हम्प बैक होता है, एक डवैगर्स हम्प निकला होता है, राइट? So that is also something that you guys need to take care of because it's not normal. और फिर उसके बाद आप लास्ट में जो एरो है, you guys can see over here, this one, you can see कि यहाँ पे उनको कितना ज्यादा strain आ रहा है. So these are the 3 points that you guys can see कि यहाँ पे सबसे पहले आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में रेगुलर जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें डी अलाइनमेंट इन 3 पोजीशन से स्टार्ट हो जाती है. सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू जस्ट ब्रॉडन अप योर शोल्डर्स. आपने एक स्लाउच पोस्चर नहीं बनाना है. इस पोस्चर को बेसिकली हम बोलते हैं स्लाउच पोस्चर, या फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी इसको बोला जाता है. और इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? ऑल यू गाइज हैव टू डू दैट योर शोल्डर्स वुड बी प्रोट्रूडेड आउटवर्ड. आपके शोल्डर्स जो हैं वो बाहर की साइड पे होने चाहिए, और उनकी जो अलाइनमेंट है, उनका जो लेवल है, दैट वुड बी अलाइनिंग योर ईयर्स. आपके कानों के साथ आपके शोल्डर्स जो हैं वो अलाइन होने चाहिए. ओके, ऑल यू गाइज हैव टू डू इट व्हाइल आई एम सेइंग यू गाइज. तो उसी वक्त आप परफॉर्म भी करके देख सकते हैं अपने ऊपर. It's not a problem. You guys can do it, and it would be great if you guys will try it right now because you might forget it afterwards. All right. So उसके बाद आपने अपने लो बैक पे आ जाना है. ठीक है, आपने अपनी स्पाइन को करेक्ट करने की कोशिश करनी है. आपका जो टमी होता है ना, इफ यू वुड लाइक टू सेटल इट डाउन, आपका पेट बाहर क्यों आता है, आज आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि जो आपकी स्पाइन जो है वो जब आप इसी पोस्चर में बैठते हैं ना, क्राउची पोस्चर में, स्लाउच पोस्चर में, तो आपकी बेली बटन जो है वो भी प्रोट्रूड करने लगता है, बाहर निकलने लगता है. तो अगर आप अपने स्पाइन को पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से सपोर्ट देंगे कि अगर आप जो चेयर है जिस तरह से आप बैठ रहे हैं ना, तो आपकी ये जो चेयर का पीछे से स्टैंड है ना, इट शुड बी लॉन्गर इनफ टिल हियर. ओके, एंड देन यहाँ पे आर्म रेस्ट होना चाहिए. पीछे आप कुशन भी रख सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन कि आपको यहाँ से प्रॉपर दिखे कि किस तरह का पोस्टर आपका होना चाहिए. दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. तो इसके लिए आपने, आपकी जो कमर है वो इस जो बैक रेस्ट है, अगर ये प्रॉपर एक कंफर्टेबल कस्टमाइज चेयर होगी तो आप इसको बैक के साथ अपनी टच कर सकते हैं ताकि आपकी बैक जो है वो भी सपोर्टेड रहे. ऑल राइट, एंड देन वी हैव व्हाट वी हैव टू डू. आप लोगों को अब एक जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होगी, दैट्स कॉल्ड चिन टक-इन्स. आपने अपनी चिन को, ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट टेक योर चिन इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, लाइक यू हैव टू टेक इट लाइक इनसाइड, तो जिससे आपकी गर्दन पीछे से स्ट्रेट हो जाएगी और आपकी जो शोल्डर्स हैं वो आपकी चिन और आपके ईयर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, आई नो दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट इनिशियली, कि जब आप इसको, आप अपने उस बैड पोस्टर से जब अच्छे पोस्टर की तरफ जाएंगे, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज. आई नो, इससे आपकी कमर थकने लगेगी because you are not used to it, you are not used to a good posture. तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप पीछे अपने बैक रेस्ट थोड़ा लंबा लगा सकते हैं. दिस चेयर इज नॉट आइडियल गाइज, दिस चेयर इज नॉट आइडियल फॉर सिटिंग. जो चेयर आइडियल है वो है कि यहाँ तक आपका ये जो इसका स्टैंड है ये यहाँ तक होना चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल रेगुलर चेयर्स हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड्स पे एक बैक, एक आर्म रेस्ट होना चाहिए. ओके, अगर आपकी कस्टमाइज चेयर है तो फिर उसमें तो फॉर्म्स इंस्टॉलेशन होगी, तो फिर वो आपके लिए और भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा. All right, so this was the first exercise. This is basically some observational exercise that you guys need to observe your spine, कि आपकी क्या आप इस तरह से बैठते हैं, और अगर आप बुरे पोस्टर की तरह बैठते हैं तो make it like this one. Okay,
Let's move on towards the ADL. This is the activities of daily living. It's the smartphone usage. This is the most abused posture that you guys do. Okay, so इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इस posture के लिए? Let's just get into it very quick. What we are going to do, अब इसके लिए आप इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर आप किस तरह से झुक के आप लोग देख रहे होते हैं, राइट? कितना ज्यादा आप लोग अपनी बॉडी को लोअर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जब उसको लोअर कर रहे हैं, अपनी गर्दन को झुका रहे हैं, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रेन आएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद आपकी जो अपर बॉडी है, यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बनने का बहुत ज्यादा खतरात हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। और उसके अलावा क्या हो सकता है? और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट हेयर। यहाँ पे भी आपको उसके बाद स्ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो स्टैंडिंग के अंदर जो गर्दन झुका के जाते हैं ना, तो यहाँ से आपका जो ट्रेपीजियस मसल है, अपर ट्रैप्स हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मेजर आप ये समझ लें कि आपके ट्रंक के अपर बॉडी के मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, और वो आप उनको एक हैबिचुअल वे में लेकर जा रहे हैं। आप उनको उस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि मैंने तो इसी तरह ही देखना है, चाहे जो मर्जी कर लो, मैंने तो देखना ही इसी तरह से है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट बैड थिंग दैट वी गाइज आर डूइंग राइट नाउ। आपका जो फोन है वो इस लेवल पे होना चाहिए दैट योर हेड शुड नॉट बी इन सच अ कॉन्स्ट्रेन कि आपको अपनी गर्दन को ना झुकाना पड़े। आप अपने हाथ को तो ऊपर लेके जा सकते हैं, हाथ में तो आपके कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी गर्दन को इसी तरह झुकाते हुए, तो आपकी नेक में स्ट्रेनिंग जरूर हो जाएगी। Okay, you guys, so you can clearly distinguish the bad thing and the good thing in this picture, right? इससे क्या होगा कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करें दैट इट वुड बी like comfortable for you guys, and then you can watch your Netflix and your dramas and whatever you would like to have. Now this is this is very famous one. The next one, it's called retraction, and this is the similar one जो आपको ऊपर भी बताया है. That's called chin tuck in. ठीक है, ये ऊपर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, the retractions and the chin tuck-ins. तो ये basically this is the one for majorly famous for your double chin issue. जिन लोग, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे डबल चिन है डॉक्टर, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट वन फॉर डबल चिन्स. If you guys are having and you wanted to have very sleek and very glamorous, आपको jaw line चाहिए है, then you have to do this exercise repeatedly day. और अब आप इसको देखें कि दिन में आप इसको 50 टाइम्स भी कर रहे हैं ना, दैट इट वुड गिव यू गुड रिजल्ट्स. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. अब आप यहाँ से देखें कि आपका जो ईयर का लेवल है और ये जो शोल्डर का लेवल है इन मैडम का, दैट इज अलाइनिंग, that is going, the line is passing in the center, so you can see it's aligning very perfectly. So chin tuck in में आपने क्या करना है कि अपनी neck को पहले आगे करें, like here इतना लेकर आए, फिर उसके बाद वापस उसको ले जाएं. So this is the chin tuck in and the retractions. कि अगर आप पहले आगे move करके गए, then you have to move back, and that's called making it backward and retraction. Okay, so what you guys have to do, like you have to repeat it like for 3 times in a day. ठीक है, अगर आप आगे लेकर जाते हैं तो hold it for 5 seconds, and if you take it back in this alignment, then also hold it for 5 seconds. and 3 sets होते हैं, मतलब एक सेट में आप कितनी दफा करेंगे उसको? 3 दफा. एक सेट में आप उसको 3 दफा रिपीट करें, तो उसी तरह से आपने 6 कह लो कि अगर आपको जितना आपको चाहिए है, जितना आपकी बॉडी ले सकती है, उतने हिसाब से आप इसको, यू कैन मैनेज ऑल बाय योरसेल्फ. दैट इफ यू वुड लाइक टू डू इट, इफ योर stamina is very lower, you are doing your exercise for the very first time in your life, you don't know anything about exercise, तो आप इसको बहुत ही ज्यादा पहली दफा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, then you have to do it for about like initial stages पे 10 दफा कर लें सिंपल. ठीक है, और इसको दिन में 3 दफा करें.